Hello friends, today we are going to solve a sample question paper of mathematics standard paper, and it is for class 10th for the coming session. This paper has been issued by the CBSE for your practice. So first of all we are going to read the all necessary notifications, that is general instructions of this question paper. The question paper carries maximum marks 40. Time allowed is 2 hours, and the general instructions are you must be ready for this before solving the पेपर. तो आप ध्यान से जनरल इंस्ट्रक्शंस को पहले से ही पढ़े रहिए, यही उसमें क्वेश्चन पेपर में रहेगा ताकि आप मेंटली तैयार रहें. तो पहला इंस्ट्रक्शन है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट of 14 questions divided into 3 sections A, B and C. मतलब क्वेश्चन पेपर टोटल इसमें 14 क्वेश्चंस हैं, ये 3 सेक्शन A, B, C में डिवाइडेड है. इसको चेक कर लीजिए. सभी क्वेश्चन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. थर्ड इज सेक्शन A comprises of 6 questions of 2 marks each. Internal choice has been provided in 2 questions. ये क्वेश्चन में पहले से क्वेश्चन पेपर में पहले से ही जनरल सेक्शन में लिखा रहेगा. देन सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच. इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन. तो ये देख लीजिएगा. देन सेक्शन नंबर 5 सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच. An internal choice has been provided in 1 question and it contains 2 study case based questions. मतलब ये उसी तरीके से जैसे अनसीन पैसेज आते हैं तो उस तरीके से पैसेज दिया जाएगा, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए के लिए. तो सेक्शन ए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा सरसरी तौर पर देख लेते हैं. क्वेश्चंस क्या हैं. पहला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15 एक्सेट्रा. और इफ 7 टाइम्स ऑफ 7th term of an AP is equal to 5 times the 5th term, then find the value of 12th term. So thus we have question number 1, 2, 3, 4, 5, and then question number 6. Now this is section A. Next is section B. In section B we have question number 7, 8, 9. And then we have question number 10. So this is up to section B. Now in section C we have question number 11. And then question number 12. Question number 12. Question number 13. And we have question number 14. Now we are going to start the solution. The solution is now the very first question. We have to find simply difference of 2 terms of the AP, and we know the formula. The difference between nth and mth term, that is an minus am is equal to n minus md. You directly put the value of n is equal to 25
m is equal to 15 and d is 3, thus we get the answer this. Second method can be, now in the question we have first term is 6, common difference is 3, so A25 is 78, A15 is 48. Now find out the difference, this is 3. So you can solve the question by using formula n minus m into d, or A25, first of all find out A25, then find out A15, and then find the difference. Now second question is, second part, R part is this. Seven times. The seventh term of an AP is equal to 5 times the fifth term of, then find the value of its 12th term. तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है तो उसको हम जनरली AP में मान लेते हैं. तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A and the common difference be D. Now A7 is A plus 6D and A5 is A plus 4D. Now according to question, put the conditions here. 7A7 is equal to 5A5, वैल्यू पुट करिए और तब ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे. So A11D comes out to be 0, that is A12 minus 1 is equal to 0, that is 12th term is 0. Now the second question is find the value of m so that the quadratic equation mx 5x minus 6 is equal to 0 has two equal roots. So this is the we take this quadratic equation as it is because it is printed in the question paper. ये question paper में प्रिंट है तो हम इसको as it is लेते हैं. अब आगे चलते हैं. आगे ये है इसको क्या कर इसमें वी आर गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज mx 5x माइनस 6 इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फॉर्म में और इसका d निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 36 m स्क्वायर एंड वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स d मस्ट बी 0. So 36 m square is equal to 0 means m is equal to 0 for this given question. अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमने लिखा नहीं है. एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता तो आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए. उसमें देखिए फिगर बनी हुई है. इस फिगर में OP 2R के बराबर है. OP इज इक्वल टू 2R. OA इज इक्वल टू R. ये दिया हुआ है. हमें निकालना है कि किस टाइप का पहले एंगल APB निकालना है, फिर ये किस टाइप का ट्रायंगल है. APB किस टाइप का ट्रायंगल है. इसके लिए देखिए इन राइट ट्रायंगल OAP, इसको राइट ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें मालूम है PA यानी टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है. तो एंगल OAP 90 डिग्री है, इसलिए ट्रायंगल OAP 90 डिग्री का होगा. तो साइन ऑफ APO, इस एंगल का साइन लेंगे तो ये होगा OA अपॉन OP, दैट इज R अपॉन 2R एंड दिस इज 1/2. तो thus बाय ट्रिग्नोमेट्री एंगल APO इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये एंगल इस एंगल का साइन 1/2 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि ये राइट एंगल है. इसी तरीके से एंगल OPB भी आपका 30 डिग्री आएगा इसी तरीके से. और ये टोटल एंगल जो होगा APB ये आपका 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर. तो यहाँ जो एंगल APB ट्वाइस ऑफ एंगल APO है, इसका रीजन इससे लिखा हुआ है
कि ट्रायंगल ओ ए पी और ओ बी पी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। उसको डायरेक्टली हमने यूज़ किया क्योंकि क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का है तो उसे प्रूव नहीं किया। तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा, ओ पी दोनों में कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है, तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी, इसीलिए ए पी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी ओ, ये सीधे लिखा हुआ है और ये 60 डिग्री के बराबर होगा। अब कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए पी बी किस टाइप का ट्रायंगल है। तो इसमें देखिए ये एंगल आपका एंगल पी ए बी और पी बी ए ये भी 60 डिग्री के होंगे। ये पहले से 60 डिग्री का हमने प्रूफ कर दिया है, तो इसलिए ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल होगा। इसका रीजन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कैसे होगा ये, बिकॉज एंगल ए ओ बी 120 डिग्री। ये क्यों होगा? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्यों है? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों का सम 90 प्लस 90 180 डिग्री है। इसीलिए एंगल ओ और एंगल पी, एंगल ओ और एंगल पी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल पी पहले से ही 60 डिग्री निकाल लिया है, इसलिए एंगल ओ भी 120 डिग्री होगा। ये इसका रीजन है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में इसको लिख दिया है। तो ये आपका 120 डिग्री होगा। अब आगे देखिए ट्रायंगल ओ ए बी में अगर ये वाला एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल है। तो इस ट्रायंगल ओ ए बी में x प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, या 2x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल x 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब टोटल एंगल a 90 डिग्री है और x 30 है, तो एंगल पी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। और इसी तरीके से एंगल पी बी ए इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों देखिए एंगल 60 डिग्री हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंगल पी 60 डिग्री, एंगल पी ए बी 60 डिग्री, एंगल पी बी ए 60 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल ओ ए बी पी ये आपका ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि सारे एंगल्स इसके 60 डिग्री के बराबर है। सो दिस इज द रीजन है। 2 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी हो गया सोल्यूशन, बट चूँकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर है तो इस शॉर्ट में हमने कोशिश किया है इसको सॉल्व करने का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 12320 ये आपका गिवन है। इफ रेडियस ऑफ बेस इज 56 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस 56 सेंटीमीटर है, देन फाइंड इट्स हाइट, कोन की हाइट निकालनी है आपको। तो क्या दिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल इज 12320 ये गिवन है। आर इक्वल टू 56 गिवन है, तो एल कम्स आउट टू भी सॉल्व करिए 70 होगा। अब हाइट ऑफ
कोन ये फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल इज 70 डिग्री आ गया था, आर 56 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे, आर कम्स आउट, हाइट कम्स आउट हुई 42 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इसमें एक टेबल दे रखा है जिसमें कि मिसेस गर्ल रिकॉर्डेड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग टेबल। तो ये आपका टेबल दे रखा है। सी कैलकुलेटेड मॉडल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45। मॉडल मार्क्स जो है वो 45 कैलकुलेट किया। वाइल प्रिंटिंग द डेटा अ ब्लैंक वॉज लेफ्ट, ये ब्लैंक है, दिस वॉज लेफ्ट। फाइंड मिसिंग फ्रिक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो, ये टेबल गिवन है, इसमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी मान लिया इसको एक्स, इसको आपको निकालना है। अब मॉडल क्लास का ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए उन्होंने कहा है कि एज मॉडल मार्क्स इज 45, ये मिसेस गर्ग ने रिकॉर्ड किया 45। तो मॉडल क्लास 45 किस उसके बीच में आएगा, 40 और 60 के बीच में। सो देयर फॉर आवर मॉडल क्लास इज 40 to 60। नाउ वी नो द फार्मूला फॉर मॉड का ये ग्रुप फार्मूला है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये फार्मूले याद होने चाहिए। तो एम ओ इक्वल टू एल प्लस इनसाइड द ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो जहाँ पर कि L जो है लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास जो कि ये 40 है, F1 है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जहाँ पर X अननोन है, इसको निकालना है। F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज दिस, तो ये 10 है। F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास दैट इज सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और यहाँ पर ये है 6, यहाँ पर ये 6 है। H क्लास साइज वो सभी में यूनिफॉर्म है और वो यहाँ पर 20 है। अब इस फार्मूले में L, F1, F0, F2 इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 12 आएगा, यानी मिसिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो 12 होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। देन अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है if Ritu were younger by 5 years, then what she really is? Then square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज है अलजेब्रा में, तो क्योंकि आप वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका सेंस क्या निकलता है। मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज है इंग्लिश की स्पेशली, ये कह रहे हैं कि ऋतु की जो प्रेजेंट एज है ये 5 साल पहले जो इसकी एज थी उस एज का स्क्वायर प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा है, ये मतलब हुआ इसका। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऋतु की जो प्रेजेंट एज है 5 साल पहले जो उसकी एज होती, तो वो उसके प्रेजेंट एज के 5 टाइम, उसका स्क्वायर उसके प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा होगी, तो उसकी प्रेजेंट एज बताइए। तो सिंपल सा है, जो पूछा जाए आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये आप इसको पहले सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर लेट प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बी x ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगा दी, क्या मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ उसमें। इफ ऋतु वी आर यंगर बाई 5 years, then what
सी रियली इज़, 5 साल पहले उसकी जो एज थी, देन स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 5 टाइम्स 11 मोर द 5 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन की कंडीशन है और ये 5 साल पहले जो एज थी उसका स्क्वायर, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बन गई तो आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू 14 और 1 आएगी। अब यहाँ देखिए दो वैल्यूज़ हैं 14 और 1। अब अगर 1 ईयर रेंज लेते हैं तो ये 5 साल पहले नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए 1 ईयर एज हम इसको एडमिट नहीं कर सकते। सो x इक्वल टू 14 ईयर्स ये आपका एडमिसिबल होगा। तो आंसर इज रितु's प्रेजेंट एज इज 14 ईयर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आर पार्ट के पहले वाला। अब चलते हैं इसके आर पार्ट में। तो सिंपल इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन दिया है 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इक्वल टू 0। इसको x के लिए सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। p और q यहाँ कांस्टेंट हैं तो x की वैल्यू p और q के टर्म्स में आएगी। तो इसको ब्रैकेट को ओपन किया, ये हो गया। क्योंकि p यहाँ इन्वॉल्व है x के साथ में, तो इसलिए p² को इसके साथ रखा और माइनस q² इसको इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। अब ये 3x माइनस p का होल स्क्वायर है और ये q² है, स्क्वायर रूट लिया तो ये आया 3x माइनस p इज इक्वल टू प्लस माइनस q। अब p को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो x की वैल्यू आपकी ये दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू p प्लस माइनस q बाई 3, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं x इक्वल टू p प्लस q बाई 3 और x इक्वल टू p माइनस q बाई 3, ऐसे भी आंसर है। ये हो गया आपका सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट। सेक्शन ए का पूरे जितने क्वेश्चन हैं उन सब का 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में है, इसमें फिर टेबल दे रखा है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन पेपर साइड में रख लीजिए। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। फाइंड मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। तो मीडियन निकालना है ग्रुप डेटा का और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना है कि क्या मतलब हुआ। तो ये टेबल बना लिया हमने, इसमें 0 to 1 40, 0 to 1 क्लास इंटरवल 40 दे रखा है, 1 to 2 80 है, 2 to 3 62 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये, और 3 to 4 सेंटीमीटर 30 स्टूडेंट्स जंप करते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर 30 स्टूडेंट्स जंप करते हैं। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक अलग से टेबल में हमने ऐड कर दिया। तो ये है पहले फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 1 से 40 होगा, देन इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो दिस इज़ 120, देन इन तीनों कॉलम को ऐड करिए आपका हो जाएगा 182, देन फिर इसमें 38 ऐड करिए 220 और फिर 220 में 30 ऐड करिए 250 ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है 250 ही आएगी। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या मीडियन आपको निकालना है। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 250 है, तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मीडियन क्या होता है इन केस ऑफ इवन नंबर, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। उसी को यहाँ सॉल्व किया तो n/2th टर्म मीन्स 250 का हाफ 125 यानी 125th टर्म, और फिर उसका अगला यानी 126 टर्म और इन दोनों का एवरेज। तो 125th टर्म और 126th टर्म का जो एवरेज है, चूँकि 125th और 126th टर्म ये
2 to 3 के बीच में आएगा तो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं इनका दोनों का एवरेज आएगा 2 और 3 के बीच में, तो वो भी इसी में रहेगा। मतलब कि मीडियन फॉल्स इन द क्लास इंटरवल 2 to 3, तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। अब ये आपका मीडियन क्लास डिसाइड हो गया। फिर से वही फार्मूला फॉर मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ME इक्वल टू L प्लस N/2 CF/F इंटू H। L देखिए यहाँ पर लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और N/2 ये आपका 125 है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास परसेंट द मीडियन क्लास, दिस इज 120 जो कि यहाँ पर है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इट इज़ F 62 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और ये जो H है क्लास साइज है वो 1 है। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2.081 के आसपास आए। सो मीडियन देयरफॉर मीडियन कम्स आउट टू बी 2.081। ऑफकोर्स ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि मीडियन जंप है ये। तो अब कह रहे हैं इंटरप्रेट दिस मीडियन, इसका मतलब है कि 2.081 बीच में होगा जो जंप होगी, और आधे स्टूडेंट्स अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जंप्ड लेस देन 2.081 सेंटीमीटर सर, इट इज़ मीटर्स, and other half have jumped more than 2.8681 meters। ये आपका इसका इंटरप्रिटेशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंस्ट्रक्शन में है, जो डिफ़िकल्ट हो सकता था जितना क्वेश्चन, शायद उन्होंने इस सैम्पल पेपर में दे दिया है। तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है। इसके लिए जैसा कि आपको मालूम है कि पहले एक रफ फिगर बनाइए। तो एक रफ फिगर क्या है कि हमें एक 4 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का 4 सेंटीमीटर रेडियस का पहले एक सर्कल ड्रा करना है, और इस पर ऐसे टेंजेंट्स 2 कॉमन टेंजेंट ड्रा करने हैं जो कि एक दूसरे पर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिगर में देखिए ज़रा, इसको सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये कह रहे हैं ये 60 का होना चाहिए। तो ये 60 का होगा, तो इन दोनों रेडियस के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। ये इस क्वेश्चन की एनालिसिस है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप, वी ड्रा अ सर्कल CO4, मतलब सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। वी ड्रा सर्कल CO4, वी ड्रा ए रेडियस OA, ये कहीं भी आप ड्रा कर लीजिए अपने कॉन्वेंट के हिसाब से। देन कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद O एट पॉइंट O ऑफ OA टुवर्ड्स दिस। तो ये 120 डिग्री का है, इसको आप ड्रा कर दीजिए। तो दूसरा रेडियस हो जाएगा OB, ये 120 डिग्री हो गया, और ये बीच का एंगल। अब क्या करेंगे, ए पर पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल आप विद द हेल्प ऑफ कंपास ही करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास ही करेंगे हम, सॉरी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये आपका गाइडलाइंस में
कहीं शायद क्लासरूम में बताया गया नहीं, जितने भी एंगल हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एंगल आप क्लास 10th में विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर ही करना है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर वी ड्रा एंड 90 डिग्री हियर, 90 डिग्री हियर। ये दोनों जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो पॉइंट आपका P हो जाएगा, यानी एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस तरीके से PA और PB इन ये दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन एज गिवन बिलो shows runs scored by batsmen in one day cricket matches. Find mean number of runs. तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है एक तरीके से ग्रुप डेटा में, आपको मीन नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन है, क्लास इंटरवल्स हैं, सब गिवन है, इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। ये तो इतना आपका क्वेश्चन पेपर में पार्ट, अब सोल्यूशन पार्ट इसे में हमने ऐड कर दिया। तो ये XI यानी मिड पॉइंट ले लिया, तो 0 और 40 के बीच में 20 है, फिर 40-80 के बीच में 60, 80 to 120 100, 120 to 160 140 और 160 to 200 में बीच में 180 आ गया। अब इन FI XI मल्टीप्लाई कर दिए, 12 into 20, 20 into 60, 35 into 100, 30 into 140, 23 into 180 and we get the subsequent results. अब क्या करना है, फार्मूला हमें मालूम है, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो इसको FI वाले कॉलम को ऐड कर देंगे तो वी गेट सिग्मा FI XI विच कम्स आउट टू बी 13,280 और सिग्मा FI दिस इज 120। फार्मूला पुट करके सॉल्व करिए तो मीन रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इज x बार इज इक्वल टू 110.67। ये आपका नंबर ऑफ रन है। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 पोल्स पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जैसा कि इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, या तो एक टावर होगा, एक लड़के की हाइट होगी एंड लाइक दैट। तो ये एक आइडियल क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आई एम जस्ट रीडिंग आउट इट। 2 vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other. 20 meters away from each other. ये 2 AB और CD 2 vertical poles हैं। The angle of elevation of top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree. तो पहला पोल ये है, इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री है। जो सेकंड पोल है इसका टॉप ऑफ एलिवेशन दूसरे पहले पोल के फुट से ये है 30 डिग्री। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द 2 पोल्स। H अगर पहले पोल की AB की हाइट H है, दूसरे की CD की हाइट स्मॉल h है, तो H माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h हमें निकालना है। तो पहले देखिए राइट ट्रायंगल इस फिगर में डिस्क्राइब कर दिया, इस क्वेश्चन में हमने डिस्क्राइब किया पहले कि फिगर में क्या क्या है। देन वी हैव टू फाइंड दिस H माइनस H। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC tan 60 हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए, जनरली 90% क्वेश्चन में 10th क्लास में tan ही पूछा जाएगा, ज़्यादातर tan से ही आपको सॉल्व हो जाएगा। साइन से कॉसेक पार्ट भी हो सकता है, बट वो वैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में tan 60, tan 30, tan 45 का ही यूज़ होगा, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस पिछला बता रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू H अपॉन CA जो कि एक 20 मीटर है, राइट। इसी तरीके से
इन राइट ट्रायंगल, और ये इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि h कम्स आउट टू बी 20√30 वैल्यू पुट करने के बाद। इसी तरीके से इन राइट ट्रायंगल ACD tan 30 इज इक्वल टू स्मॉल h/20। अगेन इसमें वही ट्रायंगल यूज हुआ, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें स्मॉल h कम्स आउट टू 20/√3। अब हमें कैपिटल H माइनस स्मॉल h निकालना है, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h वैल्यू पुट करिए और सीधे सॉल्व करिए और यहाँ डिवाइड करिए, तो दोनों के हाइट के डिफरेंस 23.12 मीटर आएगा। इसमें ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में यूनिट लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो 23.12 मीटर जरूर लिखना है। इसी का एक सेकंड पार्ट भी है इसी में, हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें भी देखिए I'm just reading out the question. A boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter away from the building. एक बिल्डिंग है OA, इससे 50 मीटर दूरी पर PQ is the boy who is standing. The angle of elevation of the top of the building from his eye is 60 degree। यानी ये जो Q पर आइज हैं बॉय की, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री है। कैलकुलेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी ये निकालना है। तो इसको डिस्क्राइब किया मैंने, लेट OA बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, एंड PQ बी द बॉय of height 1.7 meter. Also angle of elevation, that is angle RQP is 60 degree and PO is equal to QR is equal to 50 meter ये होगा। In right triangle RQA, in right triangle RQA we have tan 60 is equal to AR upon QR, see in the figure, is equal to AR upon 50। सॉल्व करें, AR is equal to 50√3 हो जाएगा। Now H is equal to AO, H is equal to AO और AO बराबर है AR प्लस RO। AR की वैल्यू हमने निकाली है 50√3 और RO QP के बराबर है जो कि 1.7 मीटर है। इन दोनों को ऐड करिए 88.2 हो गया, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कम्स आउट टू बी 88.2 मीटर। अब आइए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन खत्म, सेक्शन सी पर आइए। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11। आई एम जस्ट रीडिंग आउट द क्वेश्चन। The internal and external radii of spherical cell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find height of the cylinder. Also find total surface area of the cylinder. इसमें देखिए क्या है कि स्फेरिकल सेल है, उसको मेल्ट करके वो सिलेंडर में कन्वर्ट करते हैं। तो फार्मूला सीधे अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल V इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस कैपिटल R क्यू माइनस स्मॉल r क्यू, वेयर कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेडियाई, स्मॉल r इज इंटरनल रेडियाई। वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, कैपिटल R 5 और स्मॉल r की 3। सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 98 पाई आएगा। पाई सभी सॉल्व नहीं करते जनरली स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि जब इक्वलिटी होगा तो पाई कई बार कैंसिल हो जाता है। कैलकुलेशन को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, टाइम बचेगा। तो आल्सो वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, और यहाँ पर क्वेश्चन में R की वैल्यू उन्होंने पहले से 14 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो R जो है 7 हो जाएगा। तो ये दिस कम्स आउट टू 49 पाई H। अब क्या है
ये वॉल्यूम स्फेरिकल सेल का और सिलेंडर का दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है, क्योंकि वही इसमें स्फेरिकल सेल से ही वॉल्यूम सिलेंडर को बनाया गया है। इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आपको हाइट ऑफ दी सिलेंडर कम्स आउट टू बी 2.67 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है सिलेंडर का 2πr/h+r, और ये वैल्यूज पुट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से मैं कह रहा हूँ कि सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो रेडियस ये यूनिट है आपको लास्ट में लिखना है, बीच में आप लिखे जाएँ। तो फार्मूले आपको स्टैटिस्टिक्स में और वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया में याद रखना है, और बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कहीं भी कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरत है बस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रूव दैट the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपके, एक ये है और दूसरा थ्योरम है वो कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये पर्टिकुलर थ्योरम रिपीट हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड थ्योरम। दो थ्योरम है, दो में से एक ट्रेंड जैसा पिछला रहा है कि पूछी जानी चाहिए थी एज पर सिलेबस, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम क्वेश्चन में जो थ्योरम्स हैं इनका एक पर्टिकुलर मेथड होता है। एक होता है व्हाट इज़ गिवन, व्हाट इज़ टू बी प्रूव्ड, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखिए एंड देन प्रूव। तो इसमें हेडिंग न दे करके सीधे सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। वी आर गिवन टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल COR। अगेन COR मीन्स सर्किल विद सेंटर ओ रेडियस आर, स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये सर्किल है, ये स्मॉल आर इसका रेडियस है, सेंटर है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल APB मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल AOB मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ये क्वेश्चन में आपका कहीं APB नहीं दिया है, तो इसको इसीलिए स्टार्टिंग में सपोज कर दिया। नाउ सिंस वी नो दैट PA इज परपेंडिकुलर टू OA, ये पहली थ्योरम है, उसमें दिया है कि वी नो रेडियस ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली APB ये 90 डिग्री होगा। OBP पहले केस में OAP 90 डिग्री है, दूसरे केस में OBP ये 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटर इन क्वाड्रिलेटर OAPB एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए लिखा है ये बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये होता है चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसमें से क्या किया, OAP 90 डिग्री पुट कर दिया, PBO ये भी 90 डिग्री पुट कर दिया, और यहाँ राइट हैंड साइड 360। अब इसको सॉल्व करिए तो APB और BOA ये होगा 360 माइनस 180 डिग्री, और ये बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब कि APB एंड BOA दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, हैंस प्रूव। ये आपका हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट आते हैं आर पार्ट। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सॉल्व एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। और ये थ्योरम और ये क्वेश्चन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना टफ क्वेश्चन शायद जैसा कि कोविड के हिसाब से है, हालांकि एनसीईआरटी बुक का है तो आप छोड़ना नहीं है, इसको पूरा ध्यान से समझ के लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। द क्वेश्चन फिगर में ऑलरेडी देखिए है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle COR, a circle COR from an external point T. Prove that, हमें प्रूव करना है एंगल PTQ, एंगल PTQ means this angle is equal to twice of angle OPQ, is equal to twice of angle OPQ. ये एंगल T इस एंगल के 2 टाइम्स के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सिमिलरली जैसे पहले था, वी आर गिवन TP एंड TQ टू टेंजेंट्स टू द सर्किल COR। ये TP TQ ये दोनों टेंजेंट है सर्किल COR पर है एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। आल्सो PQ इज ज्वाइंट, ये फिगर में दे रखा है PQ को ज्वाइन कर रखा है। We need to prove angle TP PTQ, angle PTQ means this angle is equal to twice of angle OPQ, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए V ज्वाइन O to Q, ये इसको ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन मतलब इसको एक्स्ट्रा हमने ज्वाइन किया हुआ है। इन ट्रायंगल OPQ, जस्ट सी इन ट्रायंगल OPQ, फिगर को ध्यान रखिएगा, फिगर 60 में बनी होनी चाहिए। एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, ये एंगल दोनों बराबर हो। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। सो ये आपका रीजन दे रखा है। नाउ इन ट्रायंगल TPQ, इन ट्रायंगल TPQ TP इज इक्वल टू TQ, ये साइड इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स ड्राउन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, ये आपका थ्योरम। तो अगर ये साइड इसकी इक्वल है तो ट्रायंगल TPQ, एंगल TPQ एंगल LTQ, सॉरी दो बार हो गया, एंगल TQP के बराबर होगा। मतलब कि TP TQ के बराबर है, तो ये वाला एंगल P इस एंगल Q के इक्वल होगा, यही यहाँ पर गिवन है। एंड वी नो दैट OPT, ये दिस होल एंगल P OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय द थ्योरम। Radius is perpendicular to the tangent at point of contact. Angle TPQ. Next, therefore angle TPQ, angle TPQ means this angle is equal to angle TPO. Angle TPO फिगर में देख लीजिए, माइनस एंगल QPO, मतलब कि जैसे ये फिगर बनी हुई है, अब मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ये है फिगर ऐसे है और एक आपका ऐसे है। तो ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकी वैल्यू पुट कर दिया 90-x। इसी तरीके से एंगल TQP, इसी तरीके से ये वाला एंगल TQP ये बराबर हो जाएगा TQP इक्वल टू 90-x, ये भी हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, तो एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल टू 90-x पहले इक्वेशन से और फिर 90-x सेकेंड इक्वेशन से, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 - 2x हो जाएगा।
अब देखिए इन ट्रायंगल टी क्यू पी, इन ट्रायंगल टी क्यू पी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, एंगल टी पी क्यू और टी क्यू पी की वैल्यू जो है, टी पी क्यू और टी क्यू पी की वैल्यू 180 माइनस 2x जो पहले सॉल्व कर रखा है यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पुट करने पर ये सॉल्व होकर के देखिए ये इक्वेशन आ गई, और यहाँ से पी टी क्यू इस 2x और पी टी क्यू कम सा भी x की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी 1। तो ये केस बनाया है यहाँ पर, और ये है आपका केस। क्या है क्वेश्चन में उन्होंने डिफाइन किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। लाइक ट्रिग्नोमेट्री in the form of triangulation forms the basis of navigation, whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on earth with the help of satellites. ये बता दिया कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस वो कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा इन्होंने एक आउटलाइन दे रखा है। Now, अब क्वेश्चन आइए, a guard stationed at the top of a 240 meter tower observed an unidentified boat coming towards it. A clinometer or inclinometer, which is an instrument used for measuring angles or slopes or tilt. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat. Angle of depression of the board sorry that is sorry, there was a technical disturbance. So you can just read out, go through the question number 13 case study. It is the simple case of heights and distance. तो ये है आपका make a labeled figure on the basis of the given information and calculate the distance of the boat from the foot of the observation point. So this is the figure here. OL is the lighthouse, L at point L guard is there and so on. तो ये फिगर में डिस्क्राइब्ड है। इसमें इस राइट ट्रायंगल में देखिएगा एंगल OBL एंड एंगल BLM इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटर एंगल्स हैं तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, सॉरी ये अल्टरनेट इंटर एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। इन राइट एंगल LBO, इन राइट एंगल LBO cot 30 क्यों लिया है? देखिए जनरली tan 30 से आ जाता, चूँकि हमें BO निकालना था और ये हाइट दे रखी थी परपेंडिकुलर और एंगल है, तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेते हैं जिसमें कि राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर ये जो है आपका अननोन क्वांटिटी रहे। जनरली ये एक ट्रिक है जो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ करते हैं। तो BO अननोन क्वांटिटी थी, इसीलिए cot 30 लेने पर ये देखिए cot 30 BO अपॉन LO हो गया।
और यहाँ वैल्यू पुट किया तो सीधे सीधे बी ओ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 240√3। बी ओ मीन्स ये डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द लाइट हाउस, यही आपको निकालना था पहले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आइए, इसमें कह रहे हैं कि 10 मिनट्स के बाद तो फिर गार्ड ने ये देखा ये जो डिस्टेंस है 240 और √3 - 1 ये डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने तुरंत अलार्म रेज किया। अब इस समय कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, आपको ये निकालना था। तो आगे देखिए, ये क्वेश्चन में आपका सॉल्व है। तो आफ्टर 10 मिनट्स बोट रीचेस एट पॉइंट ए सच दैट बी ए इक्वल टू 240 inside the bracket √3 - 1। नाउ फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दे रखी है ए ओ इक्वल टू बी ओ माइनस ए बी, और सॉल्व किया तो 240 मीटर आ गया। तो दस इन राइट एंगल ए ओ इक्वल टू एल ओ, ये भी देखिए सॉल्व किया, ये 240 आ गया और ये भी 240 है। तो हाइट यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। दैट इज एंगल एल ए ओ ये आपका 45 डिग्री के बराबर होगा। एल ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू 240/240 इक्वल टू 1। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द न्यू पोजिशन ऑफ द बोट कम इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। दैट्स ऑल। ये आपका हो गया केस नंबर 1। अब आइए लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक्सरसाइज पुशअप्स के बारे में बताया है कि क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है, और फिर उसके बेस पर क्वेश्चंस ये हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। एक ये कह रहे हैं कि एपी निकालना है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका जो एपी है वो स्टार्ट होगा 3000, 3005 एंड सो ऑन अप टू 3900। और ये फर्स्ट टर्म है आपका 3000, कॉमन डिफरेंस 5, और लास्ट टर्म है 3900। तो हमें निकालना ही कितने नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने दिनों के बाद 3900 पर वो पहुंचता है। तो n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 3900 इस एपी का कौन सा टर्म है। तो n कम्स आउट टू बी 181। अब पूछा है क्वेश्चन में कि ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे पूछा है, इसलिए 100 ये n-1 निकाला तो 181 - 1 ये आपका आंसर 180 आएगा। सो नीतीश नीड्स मिनिमम 180 डेज टू अकॉम्प्लिश दिस गोल। जस्ट एक दिन पहले उसके बराबर का है। अब क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय द नीतीश अप टू द डे ही अचीव्ड हिज गोल। तो इसको जो है इन्होंने सॉल्व करके पूरे एपी का सम निकालना है। SN इक्वल टू n/2 a + n/2 a + l, और यहाँ 181/2 a + l ये कर दिया, और सॉल्व करके 6,24,450 इतना टोटल पुशअप्स उसने किया नीतीश ने। ये आपका लास्ट में आंसर होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। थोड़ा जल्दी में था क्वेश्चन, सोल्यूशन आई होप कि ये लिखा भी है, आपको पूरा ये आपके काम में आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एंड बेस्ट ऑफ लक। मेरा अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए, उसमें आपका क्वेश्चंस मॉडल पेपर टाइप बनाया हुआ है और सोल्यूशन भी है साथ में। दैट्स ऑल।